خطرناک کرونا وائرس کے وار پاکستانیوں کے لیے 24 گھنٹے انتہائی قیامت خیز. سب سے زیادہ کیسز، سب سے زیادہ اموات اور سب سے زیادہ مریض وینٹیلیٹرز پر گئے. معاون خصوصی صحت ظفر مرزا نے اعداد و شمار سامنے رکھ دیے. کہا 2636 ریکارڈ کرونا کیسز سامنے آئے. 57 مریض لقمہ اجل بنے. 157 مریض کو وینٹیلیٹرز پر منتقل کیا. کیسز اور اموات دونوں میں مزید اضافے کا امکان ہے. خطرناک کرونا وائرس نے سندھ میں بھی تباہی مچا دی. 24 گھنٹے میں ریکارڈ 31 مریض زندگی کی جنگ ہار گئے. اموات 427 ہو گئی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بیان. کہا 24 گھنٹے میں مزید 804 کیسز سامنے آئے. سندھ سرکار اور کے ایم سی کی سر جنگ میں اہل کراچی رول گئے. کے ایم سی کی 13 اسپتالوں کے دروازے کورونا مریضوں کے لیے بند. چوبیس گھنٹوں کے دوران 3 مسیحا زندگی کی جنگ ہار گئے. لاہور میں ڈاکٹر ثنا فاطمہ اور سلمان طاہر جان سے گئے. خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر خانزادہ شنواری خالق حقیقی سے جا ملے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے حفاظتی سامان نہ ملنے پر کام بند کرنے کی دھمکی. بلوچستان میں شہید ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لیے پیکج کا اعلان. عملے کو 3 ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا بھی فیصلہ. لاک ڈاؤن میں نرمی سے کرونا وائرس کی منتقلی تیز. 9 سے 29 مئی کے دوران 34,563 کیسز سامنے آئے. ان 20 روز میں 676 مریض جان سے گئے. وائرس پر قابو پانے کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا. احتیاط کر کے دوسروں کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا. لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا یا نرمی برتی جائے گی؟ فیصلے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اتوار کو طلب. این ڈی ایم اے کا حکام اور طبی ماہرین وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے. اب تک کے حکومتی اقدامات اور اثرات پر غور ہوگا. ٹرین سروس مزید بڑھانے پر مشاورت ہوگی. پنجاب حکومت کی نئی سفارشات تیار. پارکس، ہوٹل انڈسٹری اور ریسٹورنٹس کھولنے کی تجویز. کورونا زندگیوں میں آ چکا، اب احتیاط سے ہی زندگی بسر کرنا ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی وزیر صحت اور وزیر ہاؤسنگ سے ملاقات میں گفتگو. عثمان بزدار بولے وائرس سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کروایا جائے. سماجی فاصلہ رکھنے سے ہی بیماری کا پھیلاؤ کم ہوگا. کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تدفین کی اجازت لواحقین کو مل گئی. معاون خصوصی ظفر مرزا کہتے ہیں شہری میت کو ہینڈل کرنے میں ذاتی تحفظ کا خیال رکھیں. غسل دیتے وقت چشمہ، ماسک، گون اور دستانے پہنیں. میت کو زیادہ مت چھوئیں. جنازے کی ادائیگی اور قبرستان میں تدفین کے دوران خاص خیال رکھیں. انتظامیہ کی جانب سے لاش تحویل میں لینے کا عمل غلط قرار. طیارہ حادثے میں شہید زین پولانی اور اہلیہ سپرد خاک. تینوں بچوں کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں آج مزید 4 شہداء کی شناخت ہو گئی. گورنر پنجاب کی شہید ایئر ہوسٹس انم خان کی رہائش گاہ آمد. ورثہ سے تعزیت کا اظہار. سندھ ہائی کورٹ میں طیارہ حادثے سے متعلق درخواست کی تمام طیارے گراؤنڈ کرنے کی درخواست مسترد. سماعت 25 جون تک ملتوی. احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت. عدم پیشی پر نواز شریف کی وارنٹ گرفتاری جاری. آصف زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور عبدالغنی مجید عدالت میں پیش. گفتگو کرتے ہوئے کہا نیب زیادہ نہیں، نیب زدہ ہوں. تمام کام قانون کے مطابق کیے. ساڑھے 3 ماہ بعد صحافی عزیز میمن کے قاتل گرفتار. ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن کے مطابق نذیر سہتو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. تفتیش کے دوران نذیر سہتو نے مزید ملزمان کے نام بھی بتائے. قتل کا ماسٹر مائنڈ مشتاق سہتو ہے. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. مزید کی تلاش جاری ہے. پنجاب میں فلور ملز مالکان نے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. 20 کلو آٹے کا تھیلا 120 روپے مہنگا. آٹے کا تھیلا 805 روپے سے بڑھ کر 925 روپے کا ہو گیا. فلور ملز مالکان کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت بڑھنے پر آٹے کی قیمت بڑھائی گئی.
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती होने का इम्कान। ओगरा की पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे फी लीटर कमी की सिफारिश। लाइट डीजल पर 9 रुपए 37 पैसे और मट्टी के तेल पर 11 रुपए 88 पैसे कमी की तजवीज़। हतमी मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। वफाकी हुकूमत का बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। हजम 7,400 अरब रुपए रखा जाने का इम्कान। वफाकी और सूबाई सेहत के बजट में इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूलियों का हदफ 4,500 अरब रखा जा सकता है। अशियाए खुर्दनोश और दवाओं पर टैक्स में कमी का इम्कान। गैर मुल्की परवाज़ों को पाकिस्तान में महदूद ऑपरेशन की इजाज़त मिल गई। एयरलाइंस पाकिस्तान से मुसाफिरों को बैरून मुल्क ले जा सकेंगे। मुसाफिरों के दरमियान समाजी फासले यकीनी बनाना और SOPs पर लाजमी अमल करना होगा। गैर मुल्की तैयारों के अमले को जहाज से उतरने की इजाज़त नहीं होगी। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन का 1 जून से स्कूल खोलने का इंदिया। सदर प्राइवेट स्कूल्स काशिफ मिर्जा कहते हैं, फीस लिए बगैर 15 लाख असातिज़ा को तनख्वाहें कहाँ से दें। 50% स्कूल बंद हो रहे हैं। सिंध हुकूमत का 1 जून से स्कूल्स खोलने से साफ इनकार। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में टिड्डी दल के वार। कपास, मकई, जवार, आम और सब्जी की फसलें शदीद मुतासिर। वफाकी वजीर खुराक फखर इमाम कहते हैं, टिड्डी दल ने 28 साल बाद पाकिस्तान पर हमला किया। टिड्डियों के खात्मे के लिए चीन ताउन कर रहा है। खतरनाक कोरोना वायरस ने दुनिया भर में क़यामत ढा दी। अमरीका में 17,70,000 से जायद मुतासिर, 1,03,000 से जायद जान से गए। ब्राज़ील में 4,38,000 से जायद मरीज, 26,000 से जायद लुक़्मा अजल बने। रूस में मुतासरीन 3,87,000 से तजावुज़ कर गए। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाक फौज के जवान पेश। अमन मिशन के आलमी दिन पर आर्मी चीफ का पैगाम। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पाकिस्तानी अमन दस्ते दुनिया भर में अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। UN मुल्क में अमरीकी डॉलर मुसलसल दूसरे रोज भी महंगा। इंटरबैंक में डॉलर के कदर में 1 रुपए 12 पैसे का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर 163 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। तावन एक दिन में वो भी मैक्सिमम तादाद। कोरोना का खतरा बढ़ने लगा, केसेस तेजी से फैलने लगे। मुआवने खुसूसी सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। कहा सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा अमवात आज ही के दिन रिपोर्ट हुई। मैक्सिमम केसेस पिछले 24 घंटे के अंदर इस वक्त 157 जो हैं लोग वो वेंटिलेटर्स पे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के। ये भी मैक्सिमम तादाद है। जो डेथ्स हैं 57 एक दिन में, वो भी मैक्सिमम तादाद है। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की कमी नहीं। मुतज़ाद खबरें न फैलाएं, तशवीश फैलती है। हफ्ते को इस मामले पर तफसीली ब्रीफिंग दूंगा। बाज़ दफ़ा वेंटिलेटर्स नहीं मिलते। इस तरह की जो खबरें हैं वो अचानक जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हैं और उसकी वजह से बड़ी तशवीश पैदा हो जाती है। हकीकत हाल ये है कि इस वक्त हमारे पास वाफर मिकदार में बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कोरोना से हलाकतें और तदफीन से मुताल्लिक हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मैयत से कोरोना वायरस लगने का कोई सबूत नहीं मिला। ताहम मैयत को बहुत ज्यादा छूना या चूमना नहीं चाहिए। गुस्ल देते वक्त पानी के छींटे नहीं उड़ने चाहिए। जो मैयत होती है उससे कोरोना वायरस मुंतकिल जिंदा इंसानों के अंदर ट्रांसफ़र होने का कोई सबूत नहीं है। मैयत को बहुत ज़्यादा छूना नहीं चाहिए। एहतियाती रवैया अपनाते हुए मैयत को गुस्ल भी दे सकते हैं। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पानी के छींटे ना उड़ें। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना से मुतासरा मैयत का जनाजा मुख्तसर तरीन होना चाहिए। अहले खाना के मैयत में शरीक होने पर कोई मुमानियत नहीं, ताहम जनाजे में समाजी दूरी का ख्याल रखना चाहिए। कोरोना वायरस ने सिंध में तबाही मचा दी। एक रोज में रिकॉर्ड 31 अफराद जान से चले गए।
सूबे में हलाकतों की तादाद 427 तक पहुंच गई। 24 घंटे में 804 नए केसेस सामने आए, जिनमें से 597 का ताल्लुक कराची से है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इस वक्त 12,936 मरीज ज़ेर इलाज हैं। 308 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 52 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। खतरनाक वायरस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले मसीहा भी जिंदगी की बाजी हार गए। दूसरों की जिंदगी बचाते बचाते 4 डॉक्टर्स खुद कोरोना के बाइस मौत की आगोश में चले गए। 2 डॉक्टर्स लाहौर और एक पेशावर में जान की बाजी हार बैठा, जबकि गुजरांवाला में डॉक्टर नईम अख्तर कोरोना के बाइस लुक़्मा-ए अजल बन गए। कोरोना वायरस से मजीद 3 डॉक्टर जिंदगी हार गए। लाहौर के 2 निजी अस्पतालों के कोरोना वार्ड्स में फराइज सर अंजाम देने वाले 2 डॉक्टर्स दम तोड़ गए। फातिमा मेमोरियल अस्पताल की डॉक्टर सना फातिमा और राशिद लतीफ अस्पताल से डॉक्टर सलमान ताहिर कोरोना वायरस का शिकार हुए। 20 मई को इन दोनों डॉक्टर्स को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ये दोनों आईसीयू में वेंटिलेटर्स पर थे। ताहम हालत बेहतर न हो सकी और वो दम तोड़ गए। जनरल अस्पताल के एमएस डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन भी कोरोना में मुब्तला हैं, जो जेर इलाज हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर खानजादा शिनवारी जान की बाजी हार गए। वो खैबर टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज थे। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोरोना वायरस के बाद शहीद होने वाले डॉक्टर तो तिब्बी अमले को शोहदा पैकेज देने और मुलाजिमीन को 3 माह की इजाफी तनख्वाह देने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ड्यूटी की नौयत के मुताबिक माली मराद दी जाएंगी। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को पेशगी तनख्वाहों की अदायगी का इतलाक 1 मार्च से होगा। लॉकडाउन में नरमी और एसओपीज़ पर अमल न करने की वजह से कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। 9 मई से 29 मई तक सिर्फ 3 हफ्तों में कोरोना के 34,563 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 678 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। लॉकडाउन में नरमी के असरात जाहिर होने लगे। एसओपीज़ पर अमल ना होने से कोरोना तेजी से बढ़ने लगा। 9 मई से 29 मई तक सिर्फ 3 हफ्तों में कोरोना के 34,563 केसेस रिपोर्ट हुए। मर्ज बढ़ा तो अमवात भी बढ़ने लगीं। इस दौरान 678 अफराद जान की बाजी हार गए। कारोबार जिंदगी भी जरूरी है, लेकिन ईद की खरीदारी के दौरान ये वाज़ेह हो गया कि अवाम ने एसओपीज़ पर अमल नहीं किया और ना ही शॉपिंग सेंटर्स में समाजी फासले का कोई ख्याल रखा गया। लॉकडाउन मजीद सख्त होगा या फिर नरमी बढ़ती जाएगी? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कौमी राब्ता कमेटी का इजलास 31 मई को तलब कर लिया। अस्करी हुक्काम और एनडीएमए के माहिरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में लॉकडाउन के हवाले से फैसला किया जाएगा। इजलास में कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए इक़दाम पर गौर होगा। ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत भी की जाएगी। एनसीओसी के फैसलों की तौसीक होगी। कराची में कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन अवाम इस संगीनी को समझ नहीं रहे। बेशतर दुकानदारों ने एसओपीज़ की धज्जियां बिखेर दी। रिपोर्ट करेंगे सफदर अब्बास।